یہ ممبر کیوں سجایا گیا؟ ہم تھوڑا سا کھو گئے ہیں، ہم تھوڑا بھٹک گئے، ہم تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم لالچ کرتے ہیں، ہم آل محمد کے معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں لالچ کرتے ہیں۔ مثلا تشریف لے آئے سامعین، ذکر آل محمد سننے کے لیے ایک سوچ لے کے آئے، جاؤں گا ثواب ملے گا۔ پھر سوچ کے آئے کچھ لوگ کہ جو ہم جائیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، کچھ یہ سوچ کے آئے جائیں گے برکت ہو جائے گی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کوئی کیا نیت لے کے آتے ہے؟ کوئی ثواب کی، کوئی لالچ لے کے آتا ہے برکت کی، کوئی لالچ لے کے آتا ہے گناہوں کی معافی کی۔ ٹھیک ہے، کوئی نعوذ باللہ غلط نہیں ہے، مگر عشق کے معیار میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم نے بزنس کیا، باہر شاپ کھولی، فوراً ہمارے ذہن میں یہ سوچ آئی ہمیں اس کا منافع ملے گا۔ ہم نے نوکری کی، ذہن میں سوچ آئی یہ تنخواہ کے طور پہ ہم بدلہ لیں گے، ریگارڈ، نتیجہ، سیلری ملے گی مہینے کی، اور جب ہم ریٹائر ہوں گے تو ایک اچھی خاصی پینشن کی صورت میں پیسے ملیں گے۔ لالچ تھی۔ اللہ نے جو ہستیاں ہمیں عطا کی یہ وہ کریم ہستیاں ہیں جن سے منسلک کوئی چیز بھی ہو لالچ بنتی نہیں۔ مہربانی غور فرمانے کا شکریہ۔ لالچ بنتی نہیں۔ دنیاوی معاملات میں لالچ بنتی ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ اس گھرانے کے ساتھ لالچ نہیں بنتی، اس گھرانے کے ساتھ صرف شکر بنتا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ میں مجلس میں گیا تھا۔ نہ، مودت کا وہ معیار دنیا کو بتاؤ۔ کہاں گئے تھے؟ بتاؤ امام نے بلایا تھا۔ شاباش بھائی، شاباش، شکر ہے میرے ساتھ چل پڑے ہو۔ میں اپنی مرضی پہ نہیں گیا، میرے امام نے مجھ پہ شفقت کی نگاہ کی، اپنے گھر میں بلایا۔ امام بارگاہ، زمانے کے امام کی بارگاہ ہو گئے تھے۔ کوئی کہیں بلاتا ہے منڈی بہاؤدین، اور وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو تو خالی تھوڑا بھیجتا ہے۔ پیر محسن شاہ جی، پیر کاشف شاہ جی، کوئی بڑا آدمی، پیر صاحب سرکار، کوئی بڑا آدمی کہیں بلائے، کسی ایم نے بلایا، کسی منسٹر نے بلایا، خالی تھوڑا بھیجے گا، تحفے کوئی چیز دے کے بھیجے گا۔ کیا نیت لے کے جاؤ گے؟ ہم کسی بڑے آدمی کو ملنے جا رہے اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ دے گا؟ نہیں، نیت یہ لے کے جاؤ گے یار ہمیں منڈی بہاؤدین کے بڑے وزیر نے بلایا، ہمارے لیے یہ بھی بڑا فخر ہے کہ ہم وزیر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑا فخر ہے۔ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، فخر کی بات ہے۔ تصویریں بناؤ بھائی، ہم منسٹر کے ساتھ کھڑے تھے، ہم کسی بڑے ایم این اے کے ساتھ کھڑے تھے، بہت بڑے علاقے کے وڈیرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ سوالی بن کے جاتے ہو؟ نہیں، فخر کے لیے جاتے ہو۔ پھر کئی دن بتاتے رہتے ہو یار میں فلاں دن گیا، میں نے اس بندے سے ملاقات کی، یار میں اس کے ساتھ بیٹھا، یہ دیکھو میرے پاس تصویر بھی ہے۔ ایسے ہے، لیکن یہ اس کی محبت ہے۔ اچھے گھرانے کا ہوگا تو خالی نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا۔ آپ نیت لینے کے لیے نہیں جاؤ گے، آپ ویسے جاؤ گے، میرے لیے فخر ہے۔ قوم شیعہ، اللہ کرے ہمارے عقلوں تک یہ بات پہنچ جائے، کائنات کے بڑے جس دھر پہ جھکیں انہیں آل محمد کہتے ہیں، اور آل محمد کا یہ کم احسان نہیں، 14 ہم جیسوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مہربانی جناب، یہ کوئی تھوڑا احسان نہیں، 14 نے ہمیں اپنا ہمسایہ بنایا ہوتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے نا، جہاں ذکر ازا ہو وہاں یقیناً یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ تو آپ خوش ہو کے کہا کرو، باہر نکلو، کہاں گئے تھے؟ جی امام بارگاہ۔ کیوں گئے تھے؟ امام نے بلایا تھا۔ کیوں بلایا تھا؟ وہ کریم بڑے ہیں۔ ذکر تو ہے ہی حسین ترین ہستیوں کا،
कायनात की हसीनों का जिक्र है, हसीन ही होगा, लेकिन जिसमें फिक्र ना हो वो जिक्र अधूरा है। यहां से उठने के बाद बंदे बाहर जाएं और आपस में हंसी मजाक गपशप, ओ जी क्या पढ़ा था, ओ जी चंगा पढ़े है, ये नतीजा नहीं। नतीजा ये है जवान बुजुर्ग यहां से उठे और एक दूसरे को गले लगाए कि यार आज पता चला है हुर क्या था, अब मैं भी हुर बन के दिखाऊंगा। नहीं अर्ज कर पाया, नहीं अर्ज कर, मैं इसको आसान करता हूं ताकि सब तक ये मैसेज पहुंच जाए। सैयद से पूछा, मैंने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे मैं एक कारोबार फुला कर रहा हूं। मैंने इनसे पूछा जी क्यों कर रहे हैं? मिसाल देने लगा। फरमाने लगे रोजी का जरिया है, क्या पैसे कमाऊंगा। ओ जी आपके एक भाई है नौजवान, वो क्या करते हैं? कहने लगे जी वो नौकरी करते हैं। मैंने कहा जी क्यों करते हैं? कहने लगे इसलिए वो तनख्वाह लेंगे, ये मुनाफा कमाएंगे, वो तनख्वाह लेंगे। मैंने पूछा जी वो फलां शाह साहब आपके कजन आजकल क्या कर रहे हैं? कहने लगे जी घर बनवा रहे हैं। मैंने कहा क्यों बनवा रहे हैं? कहने लगे वो उसमें रहेंगे। ये जो गे है इसका क्या मतलब है? मुस्तकबिल, घर बन रहा है मैं इसमें रहूंगा, खाना पक रहा है मैं खाऊंगा, बिस्तर बिछा है मैं सोऊंगा, रात को इसलिए सोऊंगा सुबह उठूंगा, सुबह काम पे जाऊंगा, रात को सरकार का सदका इकट्ठा करके आऊंगा, अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। हर चीज में मुस्तकबिल। हम जितने भी वालिदैन यहां मौजूद हैं, हम में से कोई पूछे, हमसे पूछे बताओ बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? हम कहेंगे पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। नहीं पहुंचा पाया। जवानों तीन जमाने हैं यार, एक होता है माजी जो गुजर चुका हो, एक होता है हाल जिसमें हम हैं, एक है मुस्तकबिल जो आएगा। हम हर चीज मुस्तकबिल, हम खाएंगे, हम पहनेंगे, हम रहेंगे, हम कमाएंगे, हम बनाएंगे, हम जाएंगे, मुस्तकबिल। अब मैं आ गया, समझा चुका मैं, अब मैं आ गया उस पॉइंट पे जहां से मैंने बात रोक के आपके खिदमत में ये पैगाम पेश किया। अर्ज करना चाह रहा था, हमसे को पूछे कहां गए थे? इमाम ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? करीम है, कुछ देना चाहता था। मैं भी ये सोच के गया, उसने मुझ जैसे को बुला तो लिया, ये उसकी करीमी है कि वो मुझे कुछ देना चाहता था। पूछेंगे क्या देना चाहता था? उनको बताना जमाने का इमाम मुझ पे इतना करम करना चाहता था, मुझे 1400 साल पहले वाला सलमान सुना के, 61 हिजरी का हुर सुना के, वो चाहता है मैं इन्हें भी हुर बनाऊंगा। मैं भी इमाम का मेहरबानी, मेहरबानी अंकल, शुक्रिया अंकल, शुक्र बात पहुंच गई। बिस्मिल्लाह जियो। अर्ज क्या कर रहा था? हर चीज में मुस्तकबिल छुपा है। आओ मैं पहले इमाम से लेकर 11वें तक, बल्कि इससे पीछे चलें। बाबा जी अभी मिंबर पे कुरान की गुफ्तगू कर रहे थे। नूह ने कश्ती बनाई थी, ऐसे अंकल जी, कश्ती बनाई थी, वहां फुला फुला जानवर बैठा था। फरमा रहे थे जनाब नूह ने कश्ती बनाई, फुला फुला जानवर को बिठाया। नूह का बेटा ना बैठा बीवी की वजह से, कुछ कहना मान के आ गए। शायद इन्होंने ये भी कहा होगा, फिर मैं गुफ्तगू करने लग गया कि अल्लाह से नूह ने कहा था मेरे अहल हैं बचा। आवाज आई थी ये तेरे अहल नहीं, तेरे अहल वो है जो तेरा कहना मान के कश्ती पे सवार हुए। ऐसे है बाबा जी। मिट जाएगा जमाने से गुनाहों का तसव्वुर, गर इसका यकीन हो कोई देख रहा है। मेहरबानी यार, मेहरबानी हजूर, गर इसका यकीन हो कोई। देखो मैं इसकी छोटी सी एक बात आपके खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये कैमरा लगा है, इसके सामने हम में से कोई बंदा
हरकत गलत करेगा? कोई बात नहीं, सैयद आप मेरी तरफ मुतवज्जह है, कोई हरकत गलत करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कैमरा, रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग वायरल हो सकती है। देखो यार, शिया बैठे थे, मौला का जिक्र कर रहे थे, हरकतें उल्टी थी। हमें दुनिया का डर है, दुनिया क्या कहेगी। बस विलायत की पहली सीढ़ी ये है, कोई भी ना हो, कैमरा भी ना हो, इमाम का डर हो। शाबाश शाबाश मंडी बाउद्दीन, मेहरबानी मंडी, मेहरबानी। विलायत की पहली सीढ़ी ये है, कोई ना हो, अकेला हूं मैं, मगर मुझे मेरे इमाम का डर हो। बंदूक का डर एक और होता है, इमाम का डर और होता है। किसी ने मुझे सवाल किया, कहने लगे शाह जी मौला अली बादशाह का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। आज के दौर में आप क्या कहेंगे? पीर रज़ा शाह जी, मैंने कहा मोमिन वो है इस दौर में जिसका मोबाइल पाक हो। शाबाश मंडी, मुश्किल बात थी, बोल पड़े हो यार। मैंने कहा शायद नाराज हो जाओगे। ऐसे है जी, शुक्रगुजार हूं, ये मयार मोमिन है। तो मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, कैमरे का डर भी हो, लेकिन इससे कई ज्यादा गुना ऐनुल्लाह का डर हो, ऐनुल्लाह का डर हो। हाँ, कोई है जिसकी हम पे निगाह है। अच्छा देखो, अभी माशाअल्लाह सब ने मगरिबैन की नमाज पढ़ी होगी, माओ बहनों बेटियों ने अपने अपने घरों में पढ़ी होगी। जो जहां नमाज पढ़ता है, घर के कोने में पढ़े, छत पे पढ़े, मस्जिद में पढ़े, नमाज के बाद सलाम तो करता है ना। क्या सलाम करता है? अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला का ज़ुमैन घूम फिर के आता है, फिर काबा। ये सारे सलाम यूं करते हैं। पीर शमीम शाह जी, ये सलाम है। कौन है वो हस्ती जिनके लिए कमर भी झुक जाती है, आंखें भी बंद हो जाती है? अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। कभी मंडी मौका मिला तो मैं अर्ज करूंगा, ये शरीकल कुरान सरकार का लक़ब क्यों है? बस इतना सा इशारा दे जाऊं, जिस अली का 11वां बेटा शरीकल कुरान हो, वो अली क्या होगा? लो जी, बात सरकार की मौजूदगी की थी। बस एक इशारा दे के मैं वापस आता हूँ। अमीर अल मोमिनीन का एक छोटा सा वाक्य आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रज़ा शाह जी हमने सलाम किया, शरीकल कुरान, मज़हर अल ईमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़िअ ज़ुल्म व उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिबल अस्र वल अम्र ज़मान। अच्छा, ये जो झुके हो, मैंने झुकाया है? ये सर झुक गए यार आप सबके, ये मैंने झुकाया है? नहीं, इस सलाम की ताकत है। जिस सलाम की ताकत इतनी हो, मखलूक के सर झुक जाएं, उसके आने की ताकत क्या होगी? हमने क्या कहा पीर शमीम शाह जी? हमने कहा हमारा सलाम हो आप पर, ऐ जमाने के साहिब, ऐ अमर के मालिक, हमारा आप पे सलाम। सलाम के बाद हमने अर्जी की, अल अमान, अल अमान, अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौर ज़मान, मिन शर्र शैतान। क्या मतलब है? पनाह दे, बचा ले जमाने के जौर से, जमाने के फितनों से, शैतान के शर से। किसको कह रहे हैं? जमाने के इमाम को। अब वैसे आपस की बात है, हमने सलाम तो सारी हस्तियों को किया, अर्जी एक को क्यों की? माशाल्लाह माशाल्लाह, अर्जी एक को क्यों की? रसूल को सलाम करते हुए कहते अल्लाह मान मैंने फितना जमा नहीं किया। इसके पीछे एक राज है। कभी भी मैंने आखिरी इमाम को पहलू से जुदा नहीं किया, ये भी वही है, सारा घराना मोहम्मद है। लेकिन क्या करें, अल्लाह की तकसीम है, आखिरी मोहम्मद को मोहम्मद बना के महदी कह दिया। मेहरबानी भाई, आपके क्या कहने हैं? आला लोगों। लो जी, अंकल जी बड़ी खूबसूरत तकरीर कर रहे थे, मैं उसी पे बात एक छोटी सी करना चाहता हूँ। फिर एक अमीर अल मोमिनीन का एक छोटा सा वाकया, बल्कि अंकल इसी पे एक वाकया ना कहता जो है, जनाब नूह की कश्ती पे मासूम ने जो फरमाया, फरमा रहे थे कुरान में जनाब आदम है, जनाब नूह है, जनाब इब्राहिम है, फरमा रहे थे। फिर जनाब नूह ने कश्ती बनाई, कश्ती बनाई, कश्ती में जोड़े आए, जोड़ों में फिर कई जोड़े आए, न नूह का बेटा आया, न नूह की बीवी आई।
सारा सबक खूबसूरत पढ़ा। अब मैं इनको साथ लेके और आप सबको साथ लेके अल्लाह के पास चलता हूँ। खुदा बंदे आलम, ये हमारे बंदे हाथ हैं। नूह आया था, कश्ती बनी थी, जोड़े सवार हुए थे, बेटा सवार नहीं हुआ था। खुदा बंदे आलम, ये तो वाकया हो चुका, हमें बार बार कुरान में क्यों कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो? आवाज आएगी अक्ल वालों के, कुरान है निशानी। इसलिए कहता हूं, एक वो नूह था, एक इस वक्त नूह का भी मौला है। तवज्जो है? लो जी, कश्ती तैयार हुई। अब मासूम फरमाते हैं, एक छोटा सा वाक़या मैंने पढ़ना अमीरुल मोमिनीन का था, जो अली के अली बेटे का, एक बात सुना के एक अहम मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपका दिल हुआ तो या अली का भी एक छोटा सा वाक़या सुना तो, जो थक गए तो फिर जल्दी छोड़ देंगे जी। बिसाहब की लो जी, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वाजल दरूद बहुत अच्छा पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ठीक है। मगर आपकी मशहूर किताब है हदियतुश शिया, मासूम का फरमान है, जो गैबत में इस तरह दरूद पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद, फरमाया अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देखना है। मिल के पढ़ो सारे दरूद सरकार की बात। वाजल फरजा आले मोहम्मद, एक दफा फिर तो पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। शुक्रिया, इंशाअल्लाह नहीं भूलेगा, ये तोहफा था, वसूल किया, शुक्रगुजार हो। पहले दिल तो खाली रखना, दिल में बिठाए हों बुत, जहां बुत हो वो अली नहीं होता। और शायद हम में से कई लोग ये समझते हैं जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो बुत है। नहीं, कुरान के मुताबिक हर वो चीज बुत है जो उसकी राह में रुकावट है। मेहरबानी, शुक्रिया हुजूर, बड़ा खुश, मेहरबानी मोहतरम। हर वो चीज बुत है, यानी हमें किसी से इतनी आशनाई और इतनी मोहब्बत होगी कि बस हम उसके बगैर रह नहीं रहे, वो बुत है। किन के बगैर हम नहीं रह रहे? उनके बगैर जो हमारी सांसों की डोरी के बाद हमें मैयत बना देंगे। क्या करना है बेटे ने, क्या करना है बाप ने, क्या करना है भाई ने? सांसों की डोरी है, ताल्लुक है, सांस खत्म, ताल्लुक खत्म। सबने कहना है उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता तोड़ के सब चले जाएंगे। आओ मोहब्बत उससे करें जो कब्र में भी आके कहे घबराना। अहम टॉपिक है रजत, पलटना, उठना, वापस आना। मौला आएगा। अच्छा, अली के घर का मिजाज है, एक अली काबे में आता है, एक अली काबे पे आएगा। वो भी मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। मौका मिला तो मैं सरकार का खुतबा भी सुनाऊंगा। आका जब आएंगे तो खुतबा क्या इरशाद फरमाएंगे। शाह जी, ये दिलचस्पी पैदा करने के लिए जरूरी है इनको बताया जाए क्या होगा। क्यों? जब इनको ये दिलचस्पी होगी, अब क्या होगा, फिर ये माजी में नहीं घूमते रहेंगे। हाँ, माजी में घूम घूम के हम अपने आप को घुमा ही बैठे हैं। और भाई मुस्तकबिल की तैयारी करो। ओ जी मुझे उसने मारा था, ओ जी वो मेरे से लड़ा था, ओ जी उसने मुझे गाली दी। ओ यार छोड़ो यार, अगर दी थी मोमिन बनो, माफ कर दो। मोमिन में तो ताकत ज्यादा होती है माफ करने की। अगर दिल नहीं है माफ करने का, फिर भी तुम अपने दिल के अंदर ऐसी चीज न रखो जिससे तुम्हारे और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू या मामलात किसी गैर को पता चले। कोशिश कर, मोमिन है, घर की बात घर में रख। अगर फिर भी दुख है, पहले तो माफ कर, नहीं तो फिर मौला पे छोड़, आका पे छोड़। सरकार बादशाह चौथे लाल विलायत का दौर है। सरकार फरमाते, तुम्हें पता है अल्लाह के नबी ने कश्ती तैयार की थी,
बड़ा तवील वक्त लगा था। जी मौला पता। अच्छा मौला फरमाते हैं तुम्हें पता है एक औरत जो अल्लाह के नबी को भी मानती थी, अल्लाह के नबी की भी मानती थी, को और की समझ लेना तो कमाल। मंडी बहुद्दीन इंशाअल्लाह बहुत सारे मामला सीधे हो जाएंगे। यही कहता हूं अल्लाह हम सिर्फ अली को ना माने, अली की भी माने। इमामुल मुत्तकीन को वो मानता है जिसके अंदर मुत्तकियों की खुशबू हो, और मुत्तकियों की खुशबू। शाजी एक जुमला आ गया, बात कहां से कहां चलते कहां चली गई। मुत्तकियों की खुशबू बनने के लिए इमामुल मुत्तकीन का मुत्तकी पे खुतबा पढ़ा करो। बादशाह से पूछा गया आका मुत्तकी कौन है जिनके आप इमाम हैं? मौला फरमाते मेरे मुत्तकी की सबसे बड़ी फजीलत यह है वो जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत उसके पीछे भागता। शाह जी इसका मतलब यही है ना कहीं लालच तो है ना भाई, हम ये काम करें जन्नत, ये काम करें। मौला फरमाना चाहते थे दरअसल मेरा मुत्तकी लालची नहीं होता। हाँ दूसरा सरकार बस एक और बल्कि दो सुनाऊंगा मुत्तकी की, बहुत बड़ी तारीफ आका ने की। सरकार फरमाते मेरा मुत्तकी वो, बोलोगे तो नहीं मंडी दे जाऊं? फरमाया मुत्तकी वो जो किसी का ऐब देख के पर्दा रखे। यहां तो बंदे इंतजार में किसी का ऐब देखे तो एक लम्हे में उछाल दे। मुत्तकी वो जिस किसी का ऐब देख के पर्दा रखे। या अली मुत्तकी की और तारीफ फरमाया मुत्तकी। मेरी दो तारीफें जो मैंने पहले सरकार की जो मेरी जबान से आका ने निकलवाई हैं वो भी संभालना, पर ये न बोलना। मंडी बहुद्दीन या अली फरमाते मेरा मुत्तकी वो है जिसको गुनाह करते हुए झिझक आती हो। हाय 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 हाय। ये तब होगा जब कैमरे की वजह से हम यकीन कर जाएंगे कोई देख रहा है। बात बोलेगी तो नहीं? मुत्तकी पे याद रखना, बात बड़ी तवील है, बस यही मुख्तसर करके आका फिर फरमाया कश्ती बनाई। अक्सर जनाबे नूह गुजरते थे, एक चरखा काटती थी। अच्छा सरकार फिर पीर जी जल्दी जल्दी थे तवज्जो कर, दे 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 बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जरूरी बात होगी। अब मैं जब देखना चरखा काटती थी, अल्लाह के नबी अक्सर गुजरते थे। इमाम फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने एक दफा उसको कहा अल्लाह ने हमें अम्र दिया कश्ती तैयार कर रहे हैं। आज करती है अल्लाह के नबी हमने हमेशा आपकी मानी और आपको माना। एहसान फरमाना जब कश्ती तैयार हो जाए बुलाना ना, हाय हाय हाय, बुलाना ना, हमें साथ लेके जाना। लो जी कश्ती तैयार, पानी आ गया, कश्ती चल पड़ी। ऐसे अंकल जी कश्ती चल पड़ी। किसी मकाम पे कश्ती जाके रुकी, बड़े अरसा बाद जनाब नूह इरादा करने लगे कि हम वापस तो जाए उसी जगह पर जहां से हमने आगाज सफर किया था। जनाब नूह वहां पहुंचे, चलते चलते भाई सारी कायनात गर्क हो गई, चलते चलते उस बुढ़िया पे निगाह पड़ी। अल्लाह का नबी तेरे मासूम फरमाते अल्लाह का नबी हैरान होके कहते हैं तू अभी बैठी चरखा काट रही है? हाँ अल्लाह के नबी मैं तो चरखा काट रही हूं। तुझे नहीं पता पानी आया था? कहते अल्लाह के नबी नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा ऐसे फुहार देखी। मासूम फरमाते जो ही कहा ना फुहार देखी थी, उसी वक्त जनाब नूह ने अल्लाह से अर्ज़ की परवरदिगार आलम इतना तूफान जिसने पूरी कायनात को अपने लपेट में ले लिया, ये कैसी बच गई? आवाज आई अल्लाह के नबी तो वह हुज्जत, जहां हुज्जत वादा कर ले मैं वहां डबोता नहीं हो। वहां मैं मखलूक को डबोता नहीं हूं, जहां हुज्जत वादा कर ले। चूंकि आपने इसके साथ वादा किया था, फिर मैंने इसको बचाना ही था। हमसे भी वादा है। अक्सर लोगों से सुना है वो जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अक्सर लोगों से सुना है वो जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कसम इस मुकद्दस जिक्र की, खुदा की कसम हम वादा करके आए हैं, हमें निभा के जाना है।
हम सब वादा करके आए, हमें निभा के जाए। कोई खाली हाथ नहीं है, हम किसने कहा हम खाली हाथ है? हम वादा करके आए, हमें निभा के जाना है। कोशिश करो वो वादा जो बार बार तुम्हें मिंबर से याद कराया जाता है, उस वादे को समझो, निभाओ। किसी ने तुम्हारे साथ नहीं होना, अकेले होंगे। कब्र पे सरकार आएंगे, जहां से मैंने बात छोड़ी थी, कब्र पे ठोकर मार के क्या कहेंगे? अल्लाह के आम्र से उठ, मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो हमारे अपने कहाँ हैं जो हमें दफनाने आए थे। सरकार मुस्कुरा के फरमाएंगे तू भूल गया है, तू भूल गई है, सब ने सांसों की डोरी के बाद ताल्लुक ही तोड़ दिया। तुझे तो मैयत कह के पुकारते रहे, अभी तू अपने ढूंढता है। कोई तेरा अपना होता यहां होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहां हूं। बस कोशिश करो, उस अपने को राजी करो। करीम इब्ने करीम है वो अपना, शफीक इब्ने शफीक है वो अपना। इतना करीम है, मैं कभी कभी पीर काशिफ शाह जी मैं सोचता हूँ, पीर मोहसिन मैं सोचता हूँ, खुदा की कसम हमारे जो किरदार है ना, हम हुसैन की मजलिस के काबिल भी नहीं है। ये हमारे अपने का एहसान है, फिर बुला लेता है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ हमारी जबानें अली अली करने के काबिल नहीं। हाँ, क्यों? दिन में कई गीबतें कर जाते हैं, कईयों के गिले कर जाते हैं, गालियां दे जाते हैं। ऐसी जबान जो ये हरकतें करे वो इस जिक्र के काबिल थोड़ी होती है। ये फिर उसका एहसान है। वो हमारा अपना जो है, अपना हमेशा खैर खा होता है। खुदा की कसम वो अपना फिर हमें अपने दादे और अपने घर का नाम लेने की तौफीक देता है। फिर हमें वो इस जबान से दरूद पढ़ने की तौफीक देता है। वो अपना जो है एहसान है। इस शिकम में पता नहीं हम कितनों के हक खा गए, इस पेट में हमने दबाए हुए हैं। ये वो अपना है, करीम इब्ने करीम है। इन सारी चीजों को भुला के फिर दादे हुसैन के लंगर का लुकमा डालता है। हमारे कदम जिंदगी में पता नहीं कहां कहां चल के जाते हैं। ये एहसान इमाम ज़माना में बता रहा हूं, उसका करम है कहां कहां हमारे कदम जाते हैं, जहां नहीं जाने चाहिए, फिर भी वो हमारा अपना है। हमारे कदम अपनी बारगाह यानी इमाम बारगाह में ले आता है। हमारे हाथ कितने मजलूमों पे उठे हैं। अपने का एहसान कभी हम सोचे ना तो खुदा की कसम इतनी बड़ी लिस्ट बनेगी जो शायद मुकम्मल ही ना हो। कितना हमारा अपना, ये हमारे हाथ कितनी गलीज चीजों पे, कितने मजलूमों पे जाते हैं, कितनी दफा गलतियां कर बैठे हैं, फिर भी कितना अपना है। गाजी की अलम को फिर भी पकड़वाता है। ओए होए होए ओए होए होए, कितना बड़ा अपना है वो, कितना एहसान है उसका। हाँ, हमारी आंखें सारा दिन क्या क्या देखती हैं, इस काबिल नहीं है, फिर भी उसका एहसान है। अपना जो है, खैर खा जो है, फिर इन आंखों से अलम की जियारत भी करवाता है, इन आंखों से करबला की मट्टी को सलाम भी करवाता है। अपना जो है कभी करबला भी बुला लेता है। ये कोई अपना खैर खा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आज बंदा किसी का नाफरमान बन जाए या किसी के साथ थोड़ी सी इनकार कर दे या बात ना माने, बंदे सारी जिंदगी बोलते नहीं। ये अपना है, फिर कहता है आजा, फिर कहता है आजा। मंडी वालों, मैं आपकी मोहब्बत के ये आंसू देख के पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक दो इरफान के मोती और भी दे जाऊं, वरना मैं बस कर बैठा था, मैंने बहुत पढ़ लिया। अपना है, शुक्र अदा किया करो। खुदावंद आलम तेरा एहसान, तूने ऐसी हस्ती अता की जो वाकई में अपनी है, जो तन्हा नहीं छोड़ती, जो अकेला नहीं छोड़ती। अपना नहीं तो कौन, फरमाया जब तू किसी जगह अकेला रह जाए घबराना ना, फौरन पुकारना या फारस अल हिजाज। अगर तेरा अपना तेरे पास लम्हे में ना पहुंचे, नाम महदी नहीं है। कितना करीम है अपना। मंडी वालों, बस हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इशारा ही दे गया, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करो, सरकार आने वाले हैं, आका तशरीफ लाने वाले हैं। कोशिश करो जातियात से बाहर निकलो,
मोमिनों को गले लगाओ, अकीदों की बुनियादों पे मत लड़ो, बनता नहीं हमारा लड़ना। कोशिश करो जितना भी अमल इकट्ठे कर लो, हमेशा कासा खाली रखो। नहीं, बाहर एक आया फकीर, फकीर नहीं भिखारी, क्योंकि मैं इस सोच का बंदा हूं, भिखारी और फकीर में बड़ा फर्क है। भिखारी दर दर का होता है, फकीर एक दर का होता है। कोई मेहरबानी, आपकी क्या बात है, क्या मैं समाते मंडी बाउद्दीन, कोई भिखारी है आपके पास कासा लेके, उसमें पहले से सिक्के पड़े हों, आप भी सोचते हो इसको क्या दूं, इसके पास तो पहले है। कोशिश किया करो, जब भी अर्जी किया करो, कहा करो अना आब्दा का ज़ईफ, आका मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं बड़ा नातवा हूं, अमला वल वेखा तो कुछ नहीं पल्ले, तेरे कर्म वल वेखा, इंशाअल्लाह खैरात मिलेगी। खैरात आपके इंतजार में है, कर्म आपके इंतजार में है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। बादशाह बड़े मेहरबान हैं, बड़े शफीक हैं, मंडी वालों दुखी भी बड़े हैं, बस दुखी भी बड़े हैं। हाँ, जिसका घर का घर लूटा गया कितना दुखी होगा। कोई एक शहादत थोड़ी है जिसका उसको दुख हो, शहादतें हैं जिसका उसको दुख है। सबसे ज्यादा दुख, और लिखते हैं पीर शमीम शाह जी, सबसे ज्यादा दुख जमाने के इमाम को है दादियों के बाजार जाने का, दादियों के दरबार जाने का। कोशिश किया करो, हर मजलिस में कहा करो मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। कोशिश किया करो यार, रिवायत है पीर काशिफ शाह जी, खुदा ना करे कोई किसी का दुनिया से चला जाए, अफसोस करने किसके पास जाते हो जो वहां वारिस मौजूद हो। हर मजलिस में कहा करो आका तेरे घर की बेमौसमी शहादतों का बड़ा अरमान है, आका तेरे मासूमों की शहादत का बड़ा अरमान है। जरूर कहा करो आका को। हाँ, अमीर अल मोमिनीन, किसी को कुछ ना कहने वाला इमाम, शफीक इमाम, मंडी बाउद्दीन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, बेशुमार ज़र्ब बेशुमार। ये लाइन बदबख्त तेरे अमीर के पास अपनी जिंदगी के हिस्से में काफी दिन रहा। जब वापस जाने लगा, सरकार ने अमर दिया तू जा। कहते आका आप करीम बड़े हैं, दिल नहीं करता आपको छोड़ने को। इमाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुर्रहमान अर्ज करते आका आपने मुझे देख के ये जुमला फरमाया, आका मेरी तरफ से कोई कोताही होनी है? फरमाते हाँ, तूने परदेश में मेरी बेटियों को यतीम करना है। इसने फौरन पीर काशिफ शाह फौरन तलवार निकाली, अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में पेश की, या अली अभी मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। मौला फरमाते हैं अली वो नहीं जो जुर्म से पहले सजा दे, मैं करीम इमाम हूं, मैं जुर्म से पहले सजा नहीं देता। गुजरता रहा वक्त, आ गई 19 की शब, इस जालिम ने वो जुल्म किया। हाय हाय, अम्मा खून में रंगीन हुआ, रीश अतहर खिजाब हुई खून से। हसनैन करीमैन मस्जिद को दौड़े। लिखा है पहली रिवायत हसनैन करीमैन मस्जिद में थे, एक रिवायत मस्जिद में दौड़े। सरकार अब्बास अलमदार के हवाले से रिवायत में निकाले मदीन की पढ़ी है। वो फरमाते हैं गाजी अब्बास अलमदार सारी रात फरमाते हम तिलावत में मसरूफ रहे, इस इंतजार में थे अब अजान देगा मुअज्जिन तो हम मस्जिद जाएंगे। इधर मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, इसी इंतजार में थे हम। उस वक्त अचानक हम एक मुकाशफा देख रहे थे। मुकाशफा क्या देखा कि आसमान से एक काबा गिरा है। जमीन पे काबे के गिरने की देर थी, मलाइका ने आके अपने पैरों को मस करना शुरू किया, मस करके उड़ के जाते हैं। अभी हम देख रहे थे मुकाशफा, अचानक शाम वाली ने आवाज दे के कहा गाजी बाबा को जरब लग गई है, गाजी जल्दी जा मस्जिद से बाबा को लेके आ। सरकार अब्बास ने कदम जल्दी जल्दी लेने शुरू किए, ना अमामा संभाला ना नालैन संभाली। सरकार जो ही चलने लगे, फिर शाम वाली ने पीछे से हाथ रख के कहा अब्बास कोशिश करना, बाबा को कहना बेटी तेरे बगैर रह नहीं सकती, कोशिश करना मस्जिद से बाबा को कहना जल्दी वापस आओ। सरकार अब्बास गए, जाते हुए एक जुमला और भी शहजादी का कान में हजरत अब्बास की पड़ा। आवाज देके कहते हैं बाबा को कहना अगर आपने देर कर दी मैं खुद मस्जिद आ जाऊंगी।
जब कहा ना मस्जिद आ जाऊंगी, सरकारी अब्बास पहुंचे, फरमाते हमने देखा एक तरफ मौला हसन, एक तरफ मौला हुसैन, सराहने वाली तरफ मौला हनफिया खड़े हैं, हम कदमों वाली तरफ खड़े हो गए, खून से रीश अत्थर खिलाफ है, हमने कदमों वाली तरफ खड़े होके कहा आका घर चलिए, बेटी बड़ा इंतजार कर रही है। सरकार फरमाते हैं हाँ हम चलते हैं अभी। सरकार गाजी कहते हैं हमने दूसरा जुमला कहा, बाबा बेटी कह रही है अगर आपने देर कर दी हम मस्जिद आ जाएंगे, हम आपके बगैर रह नहीं सकते बाबा। जब कहा ना बेटी मस्जिद आ जाएगी, कहा हसनैन जल्दी उठाओ, मेरी बेटी का मस्जिद आना मुझ अली से बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ या अली पता नहीं सुबह क्या मरहला होगा जब शहजादी कौनैन शराबियों के दरबार में, लईनों और मलूनों के दरबार में खड़ी होकर इंतजार कर रही होगी, पता नहीं पेशी किस वक्त होती है। अल्लाह मान आ गया, ये 20 का दिन गुजर गया, 21 की रात। एक जुमला मैंने और कहना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। रात का आखिरी पहर है, फिर मोहसिन शाह अमीर अल मोमिनीन के पास काफी लोग बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं सारों को इजाजत है, चले जाओ। जाते जाते कहते हैं या अली दिल नहीं कर रहा था, कुछ देर तो और बैठने देते। सरकार फरमाते हैं असल में मामला ये है, ये टाइम है मेरी बेटियों का, ये है मेरी शहजादियों का वक्त, मैंने कुछ देर उनके साथ बैठना है। सरकार ने जब सब चले गए शहजादियों को शहजादों को बुलाया, एक एक के हाथ पे एक एक का हाथ दिया। सरकार ने वसीयत फरमाई। वसीयत फरमाने के बाद मंडी बहाउद्दीन आवाज दे के कहते हैं मेरा छोटा अली कहाँ है? सैयद सज्जाद को लेके आए, सीने अत्तर मासूम है, लेके आए। सरकार ने सीने पे लिटाया, आंखों को बोसा देने लगे, कभी दाइया कभी बाइया, कभी दाइया कभी बाइया। पूछा या अली सैयद सज्जाद की आंखों को बोसा क्यों? फरमाया असल में इसने देखने हैं वो मंजर, मैं अली पहले इसकी आंखों को बोसा दे के कहता हूँ सलाम है मेरा सज्जाद पे, जिसने वो मंजर देखने हैं जो एक गैरतमंद के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है। इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करीम मजलूमों का वारिस जल्दी आए। खुदा बंदे आलम आए वो हुज्जत खुदा उम्मत से आके पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाह करे सारे मोमिनों को वक्त देखना नसीब हो जब सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात तशरीफ लाके अपने पाक जद के उस गिरिये में जो बैठा है उसको छोड़ के कहे जालिमों तुम बेवारिस समझ के मारते रहे थे, मैं इनका वारिस आ गया हूँ। मंडी बहाउद्दीन वाला शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका। एक छोटा सा तोहफा मैं दौरान खिताब नहीं कह सका, वो आप सबके लिए है। दुआएं तो सारी खूबसूरत हैं, मगर सारी खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। छोटे इमाम ने तिलावत फरमाई और फरमाया जो शख्स रोजाना नमाज सुबह के बाद तिलावत करेगा या